Now I'm starting. Okay. Yes, ma'am. Now, first of thing, what is the pharmacovigilance? Pharmacovigilance is made up of two words, that is pharmacon and vigilier. Pharmacon is a Greek word, whereas vigilier is a Latin word. Pharmacon means drug, and vigilier means to keep careful watch for visible a possible danger of difficulties. As the definition you have already taken by the my earlier colleague. So the according, but just I am saying the definition as WHO. Pharmacovigilance is defined as the science and activities relating to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse drug effects or any other drug related problems. Actually, it includes it is an umbrella term which includes that all the safety prevalences, safety things included in that, patient safety, economic burden diminished by the pharmacovigilance. This is a key term which has used in these days. And now the background. Actually, we are going only in the sense of Indian pharmacovigilance. We are not going too much to all globally. Okay, the India is the fourth largest pharmaceutical producers and consumer in the world, because it is the second most populous country in the world. More than 60,000 generic brands across the 60 therapeutic categories. The challenging of maximizing drug safety and maintaining public confidence has become increasingly complex because multiple disciplines therapy, there are different type of therapy in India which has used, like allopathy, Ayurveda, Unani, different types, and quacks use indiscriminate use of the drugs. Always there is no scientific method they used. They only want that patient should have treat, and their treatment got good effect, but they never thought that what would be the side effect of that indiscriminate use of that particular drug. Then the emerging as clinical trial hub. All of us know that India is booming and booming in clinical trial hub, because India has most of the population, and most of the other countries people think that India's people are very poor, so they keep on eyes that. And one important thing in India is that there are the loose rules and regulations, not very strict about compared to the other countries. So most of the MNCs think that they are India would be the main clinical hub of the clinical trial. So if there are more clinical trials, बहुत ज़्यादा clinical trials होंगे, बहुत ज़्यादा, तो problem भी उतनी ज़्यादा ADRs होने की संभावनाएं क्या है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी. Then the adverse drug reaction are associated with morbidity and mortality also worldwide, not even in India, worldwide. It is many of the studies shows that 5 to 35% hospitalization and approximately 4 to 5% death due to ADRs occurs every year worldwide. Okay, so it is about moral thought, and it is an ethics that companies and regulatory authorities must not only the monitor but also proactively assess and manage drug risks throughout the product's life cycle. So in that path, our country has made running a pharmacovigilance program of India. Although the national system has reporting ADR, that is the pharmacovigilance program of India, PVPI, running by the IPC, but there is a low reporting rate. One thing is that pharmacovigilance is important or not. Yes, it is important because drug appears to be safe and well tolerated, but the safety in the real world is unclear. Why unclear? Because chronically used, repeatedly used of the drugs. Use of other drugs means when the clinical trials occurs,
I will show in you next more slides what is the procedure of clinical trials and what is the procedure of pharmacovigilance, how it is start. But यहाँ पे मैं जिससे इतना बताना चाहती हूँ कि ड्रग appears to be safe and well tolerated. क्यों? क्योंकि जब इन हम क्लिनिकल ट्रायल्स में होते हैं तो देयर आर well behaved manner, well tolerated environment. वहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स होता है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सारे जितने भी हमारे पेशेंट्स और हेल्दी बेनिफिशियरीज होते हैं वो गुड इन्वायरमेंट में होते हैं. वहाँ पर जो भी Lokesh, switch off your mic. क्लास चल रही है, चल गया है. तो लेकिन जब कोई भी ड्रग मार्केट में आने के बाद वो जब क्लिनिकली यूज होती है तो क्या होता है, वहां पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग समय के लिए ड्रग्स यूज होती हैं. अब लॉन्ग समय के लिए क्यों? क्योंकि जब मार्केट में आ जाएगी तो 1 साल 2 साल 10 साल वो मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द ईयर्स वो चलती रहेगी. बट जब क्लिनिकल ट्रायल्स में मैक्सिमम कितना टाइम होता है, 1 to 12 ईयर्स. ओके, 12 ईयर के बाद या ज्यादा से ज्यादा 18 ईयर्स के बाद वो ड्रग मार्केट में आ जाती है. टोटल पीरियड ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इज 20 ईयर्स. तो उस ईयर में केवल वहीं तक रहती है. बट उसके बाद जो मार्केट में आ जाती है तो उसका ड्रग रिपीटेड यूज होता है और वहां पर जो अदर ड्रग्स के साथ यूज होते हैं जिससे कि उनके ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस दैट आर वेरी हाई. सेफ्टी इन वल्नरेबल ग्रुप्स इज अननोन बिकॉज जब हम क्लिनिकल ट्रायल में रहते हैं तो वहां पर केवल हेल्दी पेशेंट्स और सम पेशेंट्स के जो स्पेसिफिकली डिसीज पेशेंट होते हैं, जिस पर्टिकुलर ड्रग का चाहते हैं क्लिनिकल ट्रायल करना, उसी डिसीज से रिलेटेड पेशेंट होते हैं. और थोड़ा सा कुछ केसेस में हम वहां पर जो जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है और लीवर की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट्स को लेते हैं. बट प्रेग्नेंट वीमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, एल्डरली एंड यंग चिल्ड्रन आर नॉट इवन नेवर यूज. बहुत रेयर केसेस में यूज होते हैं. तो ये यूज नहीं होते जिससे कि इनकी जो ये 20 ग्रुप्स ऑफ वनरेबल पेशेंट्स हैं वो उनकी सेफ्टी का डेटा हमारे पास नहीं होता है. तो उसके लिए भी जब वो फार्माकोविजिलेंस स्टार्ट होगा तभी हो पाएगा. Significantly harm to a few patients, rumor and myths can destroy the credibility, adherence and success of the treatment. अब यहाँ पर बहुत सारा होता है कि रूमर्स होते हैं, मिथ्स होते हैं कि दैट पर्टिकुलर ड्रग may cause adverse effect, this is not safe to us, should patient think that should we take to it or not. Many things came into the mind. And one recent example of the myth or rumor here is COVID vaccination. Initially, all people think that it is not safe. Should we take it or not? But now it is safe. After taking, many of the people, even millions of the people had taken. No. Fourth point is pharmacovigilance provide evidence. Everything involved is depend only on evidence. पहले के जमाने में क्या होता था, शादियां भी हो जाती थी, बस 4 लोग आए, शादियां हो गई. बट टुडेज एवरीथिंग वांट्स डेटा. आपको पेपर प्रूफ होना ही चाहिए. आपको आजकल अब्रॉड जाना है तो अपने शादी का भी रजिस्ट्रेशन आपको करा के दिखाना होगा कि हमारे पास प्रूफ है. बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है. सब लोग जानते हैं कि यह हमारा बेबी है, बट हमें उसको प्रूव करना है. सो फार्माकोविजिलेंस के केस में भी we have to prove, we have to show everything. अब इतने जो स्टडीज चल रही हैं इंडिया में भी, अब्रॉड, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हर जगह का डेटा है, डिफरेंट ग्लोबली हर जगह पे चल रहे हैं फार्माकोविजिलेंस. तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? बिकॉज वी नीड आवर ओन डेटा. इंडिया को अपना खुद का डेटा चाहिए बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस एंड एथनिसिटी, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, अलग अलग पैटर्न है सबके जीने का. तो उससे भी इंटरेक्शन, उससे भी कुछ चांसेस होते हैं कि जो मेन होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो भी इफेक्ट होता है. इसलिए वी वांट डेटा, वी वांट एविडेंस.
to generate evidence that will inspire public confidence and trust। और स्पेसिफिकली जो हम जनरेट होगा एविडेंस वो किस लिए, इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रस्ट होगा कि दैट पर्टिकुलर ड्रग इज सेफ, दिस इज द डेटा। ओके, फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्ट्रांगली रिकमेंडेड, इज सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग एग्जिस्ट। उससे हम अगर कहीं पे फार्माकोविजिलेंस सिस्टम आ गया तो हम क्या है, इंडिया में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम चल रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो क्या रिपोर्टिंग वहां पर एग्जिस्ट होती है या नहीं, हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर सोचिए कि अगर पीवीपीआई नहीं आता, इंडिया में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया स्टार्ट ही नहीं होता, तो क्या हम लोग रिपोर्ट करते? नेवर, हम लोग कभी रिपोर्ट नहीं करते। क्या हम उसकी मॉनिटरिंग करते? नहीं करते। क्या पीसीआई या अदर जैसे एमसीआई जो अभी एनएमसी हो गया है, ये सब लोग इसके बारे में जानना चाहते? नहीं जानना चाहते। तो इसलिए अगर वो सिस्टम एग्जिस्ट है, अगर सिस्टम बना है, तो वो कहता है कि आप रिपोर्टिंग करिए अच्छे से, एवरी ड्रग, ईच एंड एवरी ड्रग को मॉनिटर करिए, ईच एंड एवरी रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। ओके, there are the different cause of ADRs. First one is dispensing। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गए और हम फार्मेसी में गए और हमने देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स हो जाते हैं जो जिनका हमें सुनने में सेम लगता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग, ये दे दीजिए। और उन्होंने कभी कभी डॉक्टर्स की राइटिंग की वजह से, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फट गया, उसकी वजह से थोड़ा सा कट गया, तो कभी कभी डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट ने गलत दवा खा ली। या ड्रग अप्रूव्ड विदाउट प्रॉपर लॉन्ग क्लिनिकल ट्रायल। अब अगर कोई भी ड्रग शुरुआत में क्लिनिकल ट्रायल जल्दी से हो जाता है, लेकिन उसकी भी लॉन्ग स्टडी चलती रहती है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी कि कैसे होता है ये। तो अगर उसकी लॉन्ग टर्म की स्टडी नहीं हुई जो कि इसमें हुआ, तो क्या होगा, ऐसे सील्ड बेबी टाइप के हो जाएंगे या कुछ और भी प्रॉब्लम्स, एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म की हो जाती है। या प्रिस्क्राइबिंग में हमने सही से नहीं बताया क्या हुआ और डॉक्टर ने हमें गलत ड्रग प्रिस्क्राइब ही कर दी, हम सही से अपने सिम्टम्स को, वी आर अनेबल टू टेल आवर ऑल सिम्टम्स, और घबराहट में हमने कुछ गलत बता दिया तो डॉक्टर ने नहीं सही से समझ पाया या डॉक्टर ने गलत प्रेस्क्राइब कर दिया। रेस एंड एथनिसिटी, कभी कभी क्या होता है, सेम ड्रग बाहर तो ठीक काम करती है, बट जो व्हाइट्स होते हैं उनमें वो ड्रग अच्छे, जैसे एट्रोपिन है, वो एट्रोपिन का इफेक्ट जो व्हाइट पीपल हैं उनमें अलग होगा अमेरिकन में, और बट जो अफ्रीकन्स हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, उनमें उसका इफेक्ट अलग आता है। तो उसकी वजह से भी सेम ड्रग है बट उनके इन्वायरमेंट के कारण चेंज हो जाते हैं। हमने पर्टिकुलर ड्रग दिया तो वो उसको क्या, हिपैटोटॉक्सिसिटी है। अब हिपैटोटॉक्सिसिटी है तो क्या होगा, वो ड्रग हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी या कम देर तक रहेगी, एनीवन दे? अगर आपको हिपैटिक टॉक्सिसिटी है, मींस लीवर की टॉक्सिसिटी हो गई, तो वो ड्रग बॉडी में देर तक रहेगी या जल्दी निकल जाएगी बाहर? मैम देर तक रहेगी। क्यों? क्योंकि मैम घुलने में उसे मतलब डिस्ट्रॉय होने, डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा मैम। हाँ, क्योंकि जब हमारा लीवर सही से फंक्शन नहीं करेगा तो वो सही से एंजाइम को रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाएगा और वो हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए घूमती रहेगी। अब जब लॉन्ग टर्म के लिए घूमती रहेगी, उसका टी हाफ सपोज 12 आवर्स का है, 12 आवर्स के बाद उसको जाना है, हमारे बॉडी से बाहर होना है, हाफ ना, और हाफ ही बचेगी, उसके बाद हमें नेक्स्ट डोज लेनी है। बट अगर हमको हिपैटिक टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या होगा, वो हमने फिर से अगेन ड्रग ले ली तो वो धीरे धीरे ड्रग है वो एक्युमुलेशन होता रहेगा बॉडी में, मोर ड्रग ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी, जिसकी वजह से एडीआर हो सकता है। इफ तो हमें क्या है, उस पर डोज को कम करना होगा, हमें डोज कम देनी होगी। सपोज अगर किसी को हिपैटोटॉक्सिसिटी है तो उसको डोज कम देनी होगी। बट इफ द पेशेंट हैज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, देन व्हाट शुड we do we have to give more quantity or double quantity or 1.5 quantity we have to increase। क्यों? क्योंकि उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, जिससे क्या होगा,
नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, सॉरी, तो उसको भी हमको ड्रग बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ड्रग बाहर निकल, किडनी से बाहर नहीं निकल पाएगी ना। इन रिकॉन्सिलेशन इरर्स में क्या होगा? मल्टी ड्रग थेरेपी, वी कैन से दैट मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या होगा? हम डिफरेंट डिसीज स्टेट्स हैं तो उसमें वो डिफरेंट ड्रग ले रहा है, बट उनमें ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। पेशेंट एरर में क्या हो सकता है कि अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको केवल हाफ टैबलेट लेनी है, बट पेशेंट सही से समझ नहीं पाया और उसने 1.5 टैबलेट ले ली ना, तो पेशेंट की वजह से एरर हो गई। तो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एरर्स, डिफरेंट कॉजेज ऑफ एडीआरस ना, बट दीज आर नॉट लिमिटेड, देयर आर वास्ट कॉजेज ऑफ एडीआरस। Now comes in a very short history of the pharmacovigilance. As earlier, I think that you have already known history of pharmacovigilance. थैलिडोमाइड डिजास्टर, सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस का भी स्टार्ट हुआ थैलिडोमाइड डिजास्टर जब हुआ, एंड इट वाज अकर्ड ऑन 1960। उसमें क्या हुए थे कि डिफरेंट जो बेबीज थे उनको जो थैलिडोमाइड का जो सबसे बड़ा एडीआर होता था वो क्या था? फोकोमेलिया में क्या होता था कि वो फोकोमेलिया में जो डिफरेंट बेबीज होते थे उनके जो एक्सट्रीमिटीज होती थी, स्पेशली हाथ और पैर, वो बहुत छोटे हो जाते थे। बहुत छोटे हुए, उसके बाद उनको या तो लीवर में प्रॉब्लम, मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, डिफरेंट टाइप की उनको टॉक्सिसिटीज भी होती रहती थी। तो इस थैलिडोमाइड डिजास्टर जो हुआ था उसको किसने रोका था? एक ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर कैल्से, उन्होंने इसको रोका था। ठीक है, तो उसके बाद ही जब थैलिडोमाइड डिजास्टर हुआ उसके बाद ही फिर हमें पता चला एक्चुअली जो थैलिडोमाइड है ड्रग वो किस लिए यूज होती थी? मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज होती थी। जो प्रेग्नेंट वीमेन थी उनको मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज होती थी। इसका हिस्ट्री आपको पता है ना, तो मैं इसको स्किप करूं? हाँ, ठीक है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या होगा? ऑल ऑफ यू नो दैट ड्रग डिस्कवरी होती है, देन प्री क्लिनिकल ट्रायल किसमें होते हैं? हमारे एनिमल्स में, देन फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसके बाद यहाँ पर प्री क्लिनिकल INDA होता है, फिर NDA से अप्रूवल हो जाता है। फाइनली जब FDA का हमें मिल जाता है अप्रूवल, तो ड्रग कहाँ पे इंटर करती है? ड्रग इंटर्स इन फेज 4, मार्केट में आ जाती है और वो फेज 4 में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पर जब दिस डायग्राम, मैं इसको अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने जस्ट आई वांट टू क्लियर। इसके बाद सपोज फेज 4 हमारा हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? मैम हैज ऑलरेडी डिस्कस दैट कि ट्रेस प्रोसेसिंग होगा, पीरियोडिक रिपोर्ट हो गई, उसकी कंपाइल करेंगे, देन सिग्नल एनालिसिस होगी, बेनिफिट रिस्क और असेसमेंट होगा, मिटिगेशन होगा, और इफ नेसेसरी ड्रग विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बाय रेगुलेटेड अथॉरिटी, है ना। डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग हैं वो टाइम टू टाइम हमारे मार्केट से विथड्रॉ हुई हैं। जैसे कि जो अब ऐसा नहीं है कि सारी ड्रग टॉक्सिसिटी की ADR की वजह से ही विथड्रॉ हुई हैं। कुछ ड्रग, 1-2 ड्रग विथड्रॉ हुई हैं जो कि उनमें इफिकेसी ही नहीं थी और वो विथड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो पोस्ट फेज मार्केटिंग, जो फेज 4 है उसको हम पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट बोलते हैं ना। जब फेज 3 के बाद ड्रग हमारी फेज 4 में आएगी तो दैट इज नोन एज फेज 4 और पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट। पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट में क्या होता है कि इन दैट पोस्ट the 2 phases, post marketing trials and post marketing surveillance, the 2 phases running parallelly, and the जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस है उसमें 2 लोग रिपोर्ट करते हैं। उसको हमने 2 एरिया में डिवाइड कर दिया है कि उसको 2 लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला, जो सभी लोग एक्सेप्ट मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर, मींस एक्सेप्ट कंपनी। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो होता है, जिसको हम जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस और फार्माकोविजिलेंस, हम लोग जनरली इस फेज को PMS को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, बट फार्माकोविजिलेंस में ये इस जो
पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट है, फेज 4 है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फेज 4, देन हम वी जनरली से पोस्ट मार्केटिंग, एक्सक्यूज मी, मैं लेक्चर लेके फिर आ। पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट दो तरीके से होता है। पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट फेज 4 है। फेज 4 क्या है हमारी? पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट। पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट में दो फेजेस होती है, पोस्ट मार्केटिंग एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस ये जो हम लोग करते हैं, कंपनीज करती हैं, पीपीआई या जो हॉस्पिटल्स में जो एडीआर रिपोर्टिंग होती है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के अंदर आती है। इसमें दो लोग करते हैं। फर्स्ट में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पेशेंट रिलेटिव, एवरीथिंग, एवरीबडी कैन रिपोर्ट इन दैट। और जो ये रिपोर्ट करते हैं वो ICSR इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है। बट जो MAH मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर करते हैं वो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स होती हैं। उनको जो वो किस फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे? पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। वो हर 2 इयर्स में उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और ये फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल क्या है? इस पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल में डिफरेंट टाइम पर क्रोनोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, डिफरेंट ड्रग के साथ इंटरेक्शन की स्टडीज होती हैं, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ स्टडीज विच कैन ड्यू टू द ड्रग, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। Now comes in the pharmacovigilance system of India. I'm not going too deep because in earlier session you have learned about that. So जो इंडिया में है वो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है। वो रनिंग किसके द्वारा है? वो IPC गाजियाबाद, जो उसका नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसके थ्रू वो रनिंग होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग करता है और रिकमेंड करता है कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशंस, किसको? CDSCO को, ओके। अब डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुई? एक्चुअली इन इंडिया 1986 फार्माकोविजिलेंस वाज स्टार्टेड, but it was unsuccessful. It was started by the few physicians, mainly from academic institutes, and they formed 12 AMC ADR monitoring centers in 12 regional centers उन्होंने किया, but ये unsuccessful हुआ। But after 1986, in 1998, India joined the WHO ADR monitoring center, जिसको हम PDA WHO PIDM बोलते हैं। उसमें उसने क्या किया कि इंडिया ने उसको ज्वाइन किया और उसने 3 सेंटर्स बनाए, ठीक है। फर्स्ट वन इज एम्स दिल्ली, एंड दूसरा केम हॉस्पिटल मुंबई, और तीसरा JLN हॉस्पिटल अलीगढ़। 3 सेंटर बने, तीन नेशनल सेंटर बने, ओके। उनको बोला गया नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। 3 बने, लेकिन फिर उसमें ये भी अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि लैक ऑफ फंडिंग थी। गवर्नमेंट ने इसको सही से फंड प्रोवाइड नहीं किया, जो 1998 में आया। आफ्टर दैट 2005 National Pharmacovigilance Program was started under the aegis of Director General Health Services, Union Ministry of Health and Family Welfare। उसको भी WHO और वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया उसको, क्योंकि पहला वाला फंड की वजह से स्टॉप हो गया था 1998 में। तो उसके बाद 2005 में फिर से नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के नाम से आया, बट ये भी unsuccessful रहा। After that, in 2010, Pharmacovigilance Program of India started by the CDSCO with AIMS, and total 22 ADR monitoring center was set. It was successful, and in 2011, National Coordination Center of Pharmacovigilance Program of India was transferred from AIMS to Indian Pharmacopoeia Commission, और जो कि अभी तक कंटिन्यू है। Current status of pharmacovigilance in India, there are 395 ADR monitoring centers, which included medical colleges, some private hospitals, and some CHCs and some PSCs. Number of ICSR in pharmacovigilance database up to March 2029, there are
3,80,609 ICSRs has been reported from all over India. IPC and CCPVPI is a WHO collaborating center on 30 October of 2017. PVPI के कुछ पार्टनर्स भी हैं, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो फॉर्मली उसको किस नाम से जाना था, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नाको एंड NVBDCP which नेशनल वायरल, इसका फुल फॉर्म देख लेना, और AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इनके लिए ये किया गया था। इसके ये पार्टनर्स हैं। जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है उसके पहले शुरुआत में स्पेसिफिकली चार जोन थे। पहला चंडीगढ़, दूसरा जो PGIMER चंडीगढ़ था, दूसरा था सेठ मेडिकल कॉलेज केम मुंबई, तीसरा था JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर का, और चौथा था हमारा कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये चार थे, बट अभी न्यूली जो आइडेंटिफाइड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हैं वो है एम्स भोपाल, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, एम्स ऋषिकेश हरिद्वार में है, निजाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हैदराबाद एंड सिलचार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। बेनिफिट्स ऑफ ADR मॉनिटरिंग and ADR monitoring and report program can furnish the following benefits. First one is caters information about the quality and safety of pharmaceutical product. क्वालिटी और सेफ्टी को कैसे करेगा? अगर हम ADR मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसका हमें पता ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेफ है या नहीं? अगर वो सेफ है तो उसकी हमें सेफ्टी पता चलेगा। अगर वो कम ADR कॉज कर रहा है, ठीक है ना, और उसकी क्वालिटी वो, क्योंकि जो हमारा ADR है, जो हम जो फार्माकोविजिलेंस में जो हम ADR रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें सिर्फ हम साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, उसमें हम ड्रग का कोई भी अनइंटेंडेड इफेक्ट करते हैं। मींस अगर उसकी इनएफिकेसी है तो वो भी हम रिपोर्ट करते हैं कि ये ड्रग सही से काम नहीं कर रही, ये इसकी कोई इफिकेसी नहीं है। या कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट साथ में मिला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी क्वालिटी में इफेक्ट पड़ जाता है। वो किसी खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर लेती हैं, तो उसकी वजह से ADR होता है, नॉट मेन कंपाउंड बट बाय द अदर प्रोडक्ट्स विच हैज यूज्ड इन द पर्टिकुलर ड्रग। तो उसकी वजह से हमें पता चल पाता है कि इसमें ADR इसकी क्या क्वालिटी है, क्या सेफ्टी है। ये ट्रिगर्स रिस्क मैनेजमेंट प्लान, उसकी वजह से हमें उसमें रिस्क और उसके जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स बनाना होता है। ADR के कितने % इंसिडेंट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे या उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उस पे है या नहीं, उस पे डिपेंड करता है कि जो ADR है वो किस से है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के ADR होते हैं, वो किस कैटेगरीज में आते हैं, वो प्रिडिक्टेबल हैं कि वो नॉन प्रिडिक्टेबल हैं। उसके बाद क्या होता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ADR मॉनिटरिंग इज टू डिस्क्लोज द क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ADR। वो रेयर है, माइनर है, मेजर है, किस टाइप का वो ADR है, एंड आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर दैट कैन कॉज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब फर्स्ट वन इज हु कैन रिपोर्ट। ये मैम ने ये सारा चीज ले लिया है कि कौन रिपोर्ट कर सकता है, क्लिनिकल, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सेज, इवन पेशेंट्स, वार्ड बॉय, काउंसलर, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। क्या रिपोर्ट करना है? ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, नोन, अननोन, सीरियस, नॉन सीरियस, फ्रीक्वेंट और रेयर, एनी टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें रिपोर्ट करनी होती है। बट वन क्वेश्चन के कम इन माइंड, व्हाई एवरी रिएक्शन हमें क्यों रिपोर्ट करना है? अगर हम PVPI कहता है कि अगर हमें पता है कि कैंसर की ड्रग से आपको वोमिटिंग होना ही होना है, बट यू हैव टू रिपोर्ट। व्हाई इज द नीड ऑफ रिपोर्टिंग? बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव आवर ओन डेटा। जो हमारे पास डेटा है वो बाहर का डेटा है, अब्रॉड का डेटा है, बाहर के एथनिसिटी, बाहर के पीपल का डेटा है, बट अपने इंडिया का डेटा हमारे पास अभी सही से डेवलप नहीं हुआ है। वी हैव टू डेवलप आवर ओन डेटा। इसलिए
हमें उसको करना है कि इतने लोग, इतने पेशेंट खा रहे हैं और इतने रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या करना है? रिपोर्ट। कुछ भी, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, यू फीलिंग नॉट वेल, आपको नींद ज्यादा आ रही है, ईचिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, रैसेस आ गए, आपको हियरिंग लॉस हो गया, स्मेल लॉस हो गया, एनी टाइप ऑफ अनइंटेंडेड इफेक्ट, आपको कन्वल्सन्स हो गए या हाई बीपी, लो बीपी, टैकीकार्डिया, ये कुछ भी हो रहा है, आपको कोई भी, अगर आपको लगता है कि ड्रग खाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो आपको रिपोर्ट करना होता है। बहुत सारे लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं, इसी वजह से क्या है, अंडर रिपोर्टिंग हमारे इंडिया में अभी भी अंडर रिपोर्टिंग के ही कैटेगरी में वो है। और इसको कौन कर सकता है? वी पीपल, फार्मासिस्ट, नर्सेज, डॉक्टर्स, हमको ही इसको रिपोर्ट करना है। कहाँ और कैसे करना है ये है, ये सब आप लोग देख चुके हैं। सो वी आर नॉट, आई एम स्किपिंग दिस इज द सस्पेक्टेड एडीआर रिएक्शन का ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टोल फ्री नंबर है, ये है 1800-180 30 दिन 24 घंटे 30-24. Most of the time we forget in last what are the last digit, it is 24-30 or 30-24, 30 days 24 hours, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये आपका टोल फ्री नंबर है। These are the form। PVPI फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया चल रहा है, उसके साथ उसने और भी प्रोग्राम्स साथ में स्टार्ट किए हैं। पहला है AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। AEFI मीन्स एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन की वजह से होता है, और ये उसका फॉर्म है। मेडिकल डिवाइस, मटीरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, मेडिकल डिवाइसेस एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। ये है सीरियस एडवर्स इवेंट फॉलोइंग केस नरेशन फॉर्म। ये सारे कुछ फॉर्म्स हैं जो उसने अपने अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू निकाले हैं। In pharmacovigilance, this is the suspected adverse drug reaction form। पहले शुरुआत में उसने कई सारे वर्जन 1.1, वर्जन 1.2, करेंटली जो रनिंग वर्जन है वो है वर्जन 1.3। ओके, इसमें मैम ने भी दिखाया था कि आपको एक्चुअली वो भी था, बट ये अभी करंट वर्जन का ये फॉर्म है। इसमें क्या है, सेम चीजें हैं, मैं इसको अभी आपको बताऊंगी। आपको ये पूरा फॉर्म भरना होता है। कैसे? हमें सबसे पहला जो फार्माकोविजिलेंस का मेन मोटो है, कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें कभी भी ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी है, हमें ये नहीं बताना है कि किस पेशेंट को हुआ था। तो इसलिए वी हैव टू इंक्लूड ओनली पेशेंट्स इनिशियल, वी कांट राइट होल नेम। इफ प्रीति सिंह, सपोज आई एम, मुझे कोई रिएक्शन हुआ है, then patient we have to write only patient initials, then age, gender, male or female, उसका weight if है तो ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ, कब हुआ, तो ये उसका फॉर्म है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का ये फॉर्म है। इसकी अलग से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, उसके लिए अलग से पूरा एक सेशन होता है, जो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहती, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस के कौन कौन से फॉर्म है। तो पहला है जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए है, दूसरा है मटीरियो विजिलेंस के लिए है, मेडिकल डिवाइस। मटीरियो विजिलेंस में क्या है, मेडिकल डिवाइस का होता है, कोई भी स्टेंट, गॉज, जो भी लगते हैं ना हार्ट्स में, या नी ट्रांसप्लांटेशन में, कोई भी जो मटेरियल की वजह से, मटेरियल यूज होता है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से अगर हमें कोई रिएक्शन होती है तो है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जॉनसन्स का जो नी ट्रांसप्लांट है वो विड्रॉ हुआ था, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, वो क्या, उसमें रस्टिंग होने लगी थी। ये है सस्पेक्टेड, ये फार्माकोविजिलेंस का है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए हमें ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है। सिंपल से ये जो कंपनीज होती हैं उसमें सिर्फ 4 चीजें मांगते हैं, बट पीवीपीआई 6 चीजों को मैंडेटरी करता है। अगर ये 6 थिंग्स नहीं होंगी हमारे पास, तो we have to reject that form, we can't accept it। फर्स्ट वन इज पेशेंट इनिशियल्स। हमें पेशेंट के इनिशियल पता होना चाहिए, उसकी एज, क्या रिएक्शन है, व्हाट वाज द रिएक्शन, इट इज इचिंग, इट इज हेडेक, इट इज वोमिटिंग, जो भी कोई भी रिएक्शन हुई है, रैसेस,
टैकिकार्डिया, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, देन ऑनसेट ऑफ डेट ऑफ रिएक्शन, किस दिन हुआ है, सपोज आज जो भी डेट है, आज सपोज 2 तारीख है, मैंने 2 तारीख को मुझे कोई भी रिएक्शन हुआ, ठीक है, 2 तारीख को रिएक्शन हुआ, तो मैंने वो ड्रग कब खाई थी, सस्पेक्टेड मेडिकेशन मैंने क्या लिया था, कौन से हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस जो फॉर्म का नाम है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैम वी आर कंफ्यूज्ड, वी हैव टेकन 5 ड्रग्स एंड we are not clear which drug has caused the adverse effect, which is the main culprit drug. So this form's name is suspected adverse drug reaction form. We are suspecting that कि इस ड्रग ने रिएक्शन किया होगा, बट वी आर नॉट कंफर्म्ड। हमने 5 ड्रग ली हैं, सो हियर इज अ कॉलम सस्पेक्टेड मेडिकेशन, सी में देखिए सस्पेक्टेड मेडिकेशन है, और यहाँ पर है आपका 11 पॉइंट पे कॉन्कोमिनेंट ड्रग, कॉन्कोमिनेंट मेडिकल प्रोडक्ट। वहां पे आपने साथ में और भी जितनी ड्रग ली हैं, सपोज आप एंटीबायोटिक ले रहे थे, आपने एमॉक्सीक्लेव लिया और साथ में पैरासीटामोल लिया, ठीक है, अब आपने दोनों ड्रग लिया और आपको रैसेज आ गए। रैसेज इज वेरी कॉमन टू पैरासीटामोल एज वेल एज एमॉक्सीक्लेव, बट अगर आपको लगा कि आपने तो पैरासीटामोल पहले भी कभी खाया था, 2 दिन से खा रहे हैं बट आपको नहीं हुआ, आज 3rd डे है आपको हो गया, आज आपने फर्स्ट डे एंटीबायोटिक खाई, तो आपको लग रहा है कि एंटीबायोटिक से हो सकता है, तो ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल जो सस्पेक्टेड में है आप वहां पर अपना एंटीबायोटिक कोई भी एमॉक्सीक्लेव लिख दीजिए, ओके, और कॉन्कोमिनेंट में डाल दीजिए। वो साइंटिफिक कमेटी की प्रॉब्लम है, वो साइंटिफिक कमेटी का काम है कि वो किस ड्रग को आगे देखती है या उसमें क्या उसका कॉजल रिलेशनशिप बनता है ना। हम केवल सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस ड्रग से हुआ होगा, तो इसलिए हमें वो उस ड्रग को वहां पर कर देना है, उस ड्रग को वहां पर फिल कर देना है। तो हमें डेट ऑफ ऑनसेट हमें पता होना चाहिए कि किस दिन हमें रिएक्शन हुई है, सस्पेक्टेड मेडिकेशन एंड रिपोर्टर्स इंफॉर्मेशन, और किसने रिपोर्ट किया है। एक्चुअली सब मैंडेटरी है, बट ये सारा कॉन्फिडेंशियल है, हमने रिपोर्ट किया है, पेशेंट ने रिपोर्ट किया, सारा कॉन्फिडेंशियल, कोई भी आपका डेटा उसको बाहर एक्सप्लोर नहीं कर सकता है कि इस पेशेंट ने या इस डॉक्टर ने हमको ये रिपोर्ट किया है। दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स, मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड्स, एंड in the right side these are the essentially required fields. Essentially required fields, why should these need? Because we can improve the quality of our ADR form. उससे हम उसकी क्वालिटी, अपने ADR फॉर्म की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, ऑल मैंडेटरी फील्ड्स तो हमारे होंगे ही होंगे, अगर मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, ये जो 6 मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, तो हमारा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, हम अपना ADR नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। देन अगर हमें उसका डोज पता हो, देखिए यहाँ पर डोज नहीं है, बट अगर हमें उसकी डोज पता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने 500 mg खाया पैरासीटामोल, ओके, 625 mg हमने एमॉक्सीक्लेव खाया। डेट ऑफ थेरेपी स्टार्टेड, हमने किस दिन थेरेपी स्टार्ट की थी, अगर हमें डेट पता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें क्या है, कॉजल रिलेशनशिप निकालने में आसानी होगी। इंडिकेशन ऑफ यूज, हमने किस वजह से खाया था, सीरियसनेस एंड आउटकम, व्हाट आर द सीरियसनेस एंड व्हाट आर द आउटकम, वो कितना सीरियस था या नॉन सीरियस था, या और आउटकम मींस वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ट्रीट हो गया या नहीं हो गया। उसके बाद डी चैलेंज एंड री चैलेंज डिटेल्स, मैम ने अभी आपको डी चैलेंज और री चैलेंज बताया है, बट मैं बार स्लाइड में हम फिर से देख सकते हैं नेक्स्ट में। देन जो भी हमारा डेटा है हम करते हैं वो कहाँ जाता है, जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है एनसीसी, वो WHO के साथ, जो WHO के मेंबर कंट्रीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 160 कंट्रीज हैं करेंटली ना, तो उसमें हमारा एनसीसी पीवीपीआई भी है। वो क्या करता है, WHO हेडक्वार्टर जिनेवा में जितने भी हमारे ICSRs हैं वो उनको दे देता है, और उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर में वो वहां पर सबसे पहले तो जो हम ADR मॉनिटरिंग सेंटर होते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे हर जिले में बने होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं, वहां से वो कलेक्ट करते हैं और सभी लोग एनसीसी को भेजते हैं, नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, और फिर एनसीसी से वो उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जाता है, और फिर अगर वो उसका एनालिसिस करते हैं ICSR का, और अगर कोई क्वेरी होती है तो अगेन वो एनसीसी को भेजता है, फिर एनसीसी वाले AMC को भेजते हैं, फिर AMC वाले उसको पेशेंट से या डॉक्टर से फिर से उसको उस क्वेरी को रिजॉल्व करके अगेन वो एनसीसी को भेजते हैं,
देन अगेन एनसीसी से वो क्या होता है, फिर एनसीसी उसको उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर को रिवर्ट कर देती है। दिस इज द प्रोसीजर। मैम ने भी ये वाला पूरा बता चुका था। इसी में वही है कि जो भी एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर हैं, ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स को। वो फिर आगे उसको एनसीसी में करता है। एनसीसी में उसकी कई सारी कमेटी होती है, स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग कमेटी, सिग्नल रिव्यू पैनल, कोड ट्रेनिंग पैनल, क्वालिटी रिव्यू पैनल। तो ये सारे उसकी रिव्यू करते हैं और फाइनली उसको उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर में भेजते हैं। पैरेलली वो उसको सीडीएसईओ हेडक्वार्टर जो है सीडीएसईओ में भी भेजते हैं। वहां पे फिर सेम फिर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज इंडिया की होती हैं और सीडीएसईओ में और कौन भेजता है, जितनी भी कंट्रीज हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं या जो भी प्रोफेशनल बॉडी हैं, वो अपनी भी रिपोर्ट सीडीएसईओ को भेजती हैं। पैरेलली ये सब काम चलता रहता है। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि कोई भी एडीआर रिपोर्ट करने से कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। बहुत लोग डरते हैं कि अरे पेशेंट का तो डेथ हो गया तो हमें क्या, हम पे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्या, हम जेल से आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉ है कि हमने तो रिपोर्ट किया है। कभी कभी ये इवन पता है ये बेनिफिशियल भी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर ने गलत दवा दे दी तो पेशेंट मर गया। नहीं हो वो रिएक्शन की वजह से मारा हो, उसमें डॉक्टर की क्या गलती है, डॉक्टर ने तो सही दवा दी थी बट वो रिएक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। वो उसके लिए ससेप्टेबल नहीं था पेशेंट, उसको उससे एलर्जिक रिएक्शंस होती थी, उससे उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ और वो डेथ हो गई। उसमें डॉक्टर ने उसको गलत दवा नहीं दी। तो कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होता है एडीआर रिपोर्टिंग करना। ठीक है, लिमिट द अकरेंस ऑफ एडीआर, हम उसको जो एडीआर है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें एडीआर को हमेशा रेगुलरली वी हैव टू रिपोर्ट और उनका रिव्यू करना चाहिए एंड इन्फॉर्म द प्रोफेशनल स्टाफ्स। जो भी प्रोफेशनल स्टाफ है उनको हमें पूरे टाइम पर उनको बताना चाहिए, उसका रिव्यू करना चाहिए। जितने भी एडीआर हैं रीजन है वहां पे उनको इंसिडेंट्स देखने चाहिए कि दैट इफ अ न्यू ड्रग कम इन द मार्केट देन उसमें से कुछ ही पेशेंट्स को एडीआर हो रहा है या मेनी पेशेंट्स को एडीआर हो रहा है ना। फिर उसमें हमें डिस्कस करना होता है कि जो कोई चेंजेस होने हैं कि नहीं, क्या उनकी गाइडलाइन में कोई चेंजेस होना है या उनके ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस होना है। अगर ट्रीटमेंट में हम चेंज करके, सपोज कि बहुत सारे अभी ऐसा हो रहा था, जैसे सिंपल एग्जांपल है, अभी AEFI में अभी हम लोग वैक्सीन ले रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि सबको कॉमन था कि सबको फीवर आ ही रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप फीवर तो आ ही रहा है, वो उसका साइड इफेक्ट है, उसका एडीआर है ना, माइनर एडीआर है बट है, फीवर आ रहा है। तो क्या कहते थे कि आप पैरासिटामोल ले लेना। बहुत लोग क्या करते थे, पहले से ही पैरासिटामोल ले लेते ताकि उनको फीवर ना आ पाए। बट जबकि ऐसा है कि बाद में लेना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से क्या है, वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में जब उनको कीमोथेरेपी स्टार्ट होने जाती है तो पहले से ही उनको एंटीमेटिक दे दिया जाता है कि उनको वोमिटिंग ना आए, क्योंकि अब ये जनरलाइज्ड हो गया है कि जो कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी एंटी कैंसरस की, वो उससे वोमिटिंग होना ही है। तो उसके अगर हम पहले से ही उनको ट्रीटमेंट दे दें, कुछ ऐसी गाइडलाइन बना दें तो जिसकी वजह से हम उसका वो एडीआर रोक सकते हैं। हम अपने स्टाफ को जो भी कंसर्निंग एडीआरस हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स हैं या जो भी हैं, उनको हम क्या करें, अच्छे से उनकी एजुकेट करें, उनको अच्छे से मेडिसिन इंफॉर्मेशन की बुलेटिन दें, टाइम टाइम पे हम उनको सेंसिटाइज करें, अवेयर करें, जिसके से क्या है बहुत सारे एडीआर रुक सकते हैं। अब जब हमने कोई भी एडीआर कलेक्ट किया और उस एडीआर को कलेक्ट करने के बाद हमें कैसे पता होगा कि दैट एडीआर इज डन बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग और नॉट। वो जो भी एडीआर हुआ है, सपोज रैसेस हैं हमारे फीवर से, तो वो उस एडीआर की वजह से, उस ड्रग की वजह से है या अदर कोई रीजन है। तो उस चीज के लिए जो टर्म है दैट इज द कॉजलिटी असेसमेंट। कॉजल असेसमेंट हमको करना पड़ता है। तो डिफरेंट देयर आर द मेनी कॉजलिटी असेसमेंट स्केल्स, बट WHO UMC का जो ये कॉजलिटी असेसमेंट स्केल है वो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है।
और उसके साथ साथ जैसे नारेंजो स्केल है, दो हमें जो यूज होते हैं इंडिया में या अब्रॉडली भी, ये दो स्केल्स ज्यादा यूज होते हैं, नारेंजो स्केल एंड WHO UMC कॉजलिटी स्केल. Causality assessment basically involves the evaluation of the probability that detected ADR is produced by specific medication or not. ना इसमें सबसे पहला केस है सर्टेन. सर्टेन में क्या होता है, जो भी हमने पर्टिकुलर ड्रग खाई, टाइम्स जो कॉन्सिक्वेंसेज है या अदर ड्रग डिसीज रूल्ड आउट हुई हैं वो, और जो डी चैलेंज है, री चैलेंज, इसमें सब कुछ होना चाहिए. डी चैलेंज, री चैलेंज, दोनों चीज होनी चाहिए. डी चैलेंज, री चैलेंज आप समझते हैं ना क्या है? हेलो, यस मैम. ना तो सर्टेन, उसके 4 कैटेगरीज हैं. देयर आर द 4 कैटेगरीज यूएमसी स्केल की: सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल एंड अनलाइकली. इसमें सर्टेन में चारों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोबेबल में 3 चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, और री चैलेंज नहीं पॉजिटिव होना चाहिए. री चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं, री चैलेंज नहीं कर सकते हैं, या हो सकता है कि री चैलेंज नहीं हुआ हो. ठीक है. और पॉसिबल में केवल एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और अनलाइकली में कोई भी चीज हमें पता नहीं है, सिर्फ हमने कह दिया कि हमें रिएक्शन हुई है, हमें नहीं पता कि हमने कब ड्रग खाई थी, उसके बाद कब रिएक्शन हुआ. बस हाँ, हमें पता है कि हमें रिएक्शन हुआ है, बट कब हमने ड्रग खाई थी, हमें कोई डिसीज है या नहीं है, उसका री चैलेंज, डी चैलेंज कुछ नहीं पता हमें. उसकी वजह से होता है. चैलेंज मीन्स किसी ड्रग को देना, री चैलेंज. हाँ, Your slides are not moving, ma'am. So please. नॉट विजिबल. No, ma'am. They are visible, but the slides are not moving. Yes, ma'am. Now they are moving. ओके. Thank you, ma'am. नाउ मूविंग ना. हेलो. यस यस चैलेंज और डी चैलेंज में जब हमारा डी चैलेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब डी चैलेंज पॉजिटिव हुआ यानी कि हमने ड्रग को विड्रॉ कर ली, और ड्रग को विड्रॉ करने के बाद हमारा जो एडवर्स इवेंट है, एडवर्स ड्रग इवेंट है, वो डिसअपियर्ड हो गया. मींस कि वो प्रोबेबली दैट पर्टिकुलर रिएक्शंस इज ड्यू टू द दैट पर्टिकुलर ड्रग ना. डी चैलेंज किया और हमारा एडवर्स इवेंट, जो ड्रग डी चैलेंज किया, हमारा एडवर्स इवेंट डिसअपियर हुआ, वो प्रोबेबल होगा. बट इफ वी डू द डी चैलेंज एंड निगेटिव डी चैलेंज हुआ, निगेटिव डी चैलेंज मींस एडवर्स इवेंट नॉट डिसअपियर. निगेटिव, पॉजिटिव डी चैलेंज, निगेटिव डी चैलेंज, ये आपको टर्म जब आप फार्माकोविजिलेंस में जाएंगे तो जनरली यूज्ड होते हैं. जब निगेटिव डी चैलेंज हुआ तो उसमें क्या है, निगेटिव डी चैलेंज मींस एडवर्स इवेंट नॉट डिसअपियर. जब वो डिसअपियर नहीं होगा तो उस केस में जो कॉजल रिलेशनशिप आएगा वो होगा पॉसिबल. मींस कि हमने ड्रग खा रहे थे और हमने विड्रॉ की, लेकिन ड्रग क्या है, वो एडवर्स ड्रग हम खाए, रिएक्शन हुआ, बट रिएक्शन जब फिर हमने ड्रग बंद की तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन इज कंटिन्यू. मींस दैट there may be some possibilities that particular ADR occur due to the other reason, not by the drug. This is the possibility. Maybe due to the drug, but there may be also some other reasons. In re-challenge are 2 types, positive and negative. If the positive re-challenge means previously disappeared adverse drug event restarted, means जब हमने de-challenge किया यहाँ के फर्स्ट वन के बाद, जब हमने उसको डी चैलेंज किया वो डिसअपियर हो गया, लेकिन हमने उसको अगेन से री चैलेंज, अगेन हमने उसको चैलेंज किया, अगेन हमने उसको ड्रग दिया और अगेन वो रिएक्शन हुआ और फिर से वो ठीक हो गया, रीस्टार्टेड. मतलब जो ये हुआ था, जो रिएक्शन हुई थी वो फिर से रीस्टार्ट हो गई, तो वो सर्टेन केस. हमने बंद किया, हमने दवा ली, रिएक्शन हुआ, हमने दवाई बंद की और ठीक हो गया, मींस प्रोबेबल. लेकिन जब हमने दवाई बंद कर दी उसके बाद अगर हमने अगेन उसको दवा दी तो फिर से रिएक्शन हुआ, 2 बार रिएक्शन हो चुका, री चैलेंज के बाद भी रिएक्शन हुआ, दैट इज द सर्टेन केस. मतलब हमें पता चल गया कि ये दवा की वजह से, हम जितनी बार दवा खा रहे हैं उतनी बार वो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अकर्ड. दिस इज द
पॉजिटिव रीचैलेंज। एंड निगेटिव रीचैलेंज में क्या है कि वो प्रीवियसली डिसअपियर्ड एडवर्स इवेंट नॉट रिस्टार्टेड, हमने उसको दिया लेकिन वो फिर से नहीं हुआ। तो हो सकता है कि कुछ अदर इश्यूज हों, उसमें हमारा प्रोबेबल केस भी हो सकता है, पॉसिबल केस भी हो सकता है, फिर उसको हमें अलग स्टडी की जरूरत होती है। दिस इज द नारेंजो स्केल। नारेंजो स्केल में क्या होता है कि डिफरेंट वो होते हैं, उसमें स्कोर दिए जाते हैं। अगर ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम उसमें से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्रीवियस कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट ऑफ एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें अगर हमने देखा कि जो पहले भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हुए थे वो हैं कि नहीं, और उनके हिसाब से हम उसमें यस और नो के मार्क्स देते जाते हैं। यस का +1 होता है, नो का 0 होता है, ठीक है, और डोंट नो का 0। तो ऐसे करके जब हम इनको करेंगे और उनको हम मार्क्स देंगे, जब मार्क्स हमने दिया तो उसमें अगर जो मार्क्स हमने जो भी मार्क्स दिए हैं उनका जो टोटल स्कोर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 9 देन इट इज डेफिनेट। कॉजल कैटेगरी क्या होगी हमारी, डेफिनेट की होगी। डेफिनेट में क्या होगा, जो हमारा कि WHO में हमारा सर्टेन था वो यहाँ पर डेफिनेट कहला सकता है, ठीक है। तो इफ द मार्क्स या इफ द पॉइंट्स आर greater than 9 then it comes in the definite category, and if the total score is between the 5 to 8 then it should be in probable category, and if it comes in 1 to 4 then it should be possible, or less than 0 or 0 then it is doubtful, or we can say it is unlikely. These two scales are, first one is WHO UMC scale, second one is Naranjo causality scale. These are the scales for assessing the causal assessment between the drugs and ADR. Reactions कितने टाइप की होती है? There are 6 types of reaction. Type A, Type B, Type C, D, E and F. Different types of, ये सब आपको पता है, इसको स्किप करूं, आपने देखा है कि एक मुझे डिस्क्राइब करना है। Anyone? Please. Okay. There are different types of reaction. Depends on mnemonics. Type A. Hello? A. When slide are not movable then. हाँ, sorry. When slide move नहीं हो पा रही. अभी हुई? No ma'am. Yes Now? ma'am. Okay. Please say freely. Anytime ना, अगर मूव नहीं होता है तो। Types of ADR. There are different types of ADR. Depends on mnemonics. Type A. A means augmented or dose related. A for augmented, B for bizarre. Augmented, generally most of the books says there are 2 types of reaction, type A and type B. But there are many types of reaction. Specifically, here we discuss 6 types of reaction or 6 types of reaction. Then type A. Type A is augmented. Augmented means, or we can also say that dose related. इसके फीचर्स क्या है, कॉमन होता है। जो भी augmented रिएक्शन होती है, these are also known as predictable reactions. इनको हम predictable भी कह सकते हैं। इनकी जो मॉर्टेलिटी होती है, इट इज वेरी लो मॉर्टेलिटी। ये रिवर्सिबल होते हैं, अगर रिएक्शन हुआ उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। विड्रॉ करेंगे या समटाइम्स ट्रीटमेंट देंगे तो ये ठीक हो जाते हैं, कॉमन होते हैं। एंड रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ड्रग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द ऑगमेंटेड टाइप्स ऑफ रिएक्शन और dose related drugs are related to the pharmacological, these causes are due to the pharmacological action of the drug. Example के toxic effect like digitoxin toxicity, serotonin syndrome with SSRI, ठीक है, ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट है। या एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, उनको ड्रग को रिड्यूस कर सकते हैं, या साथ में हम कोई कॉन्कोमिनेंट थेरेपी दे सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या है उसको ट्रीट कर सके, ज्यादा उसकी प्रॉब्लम ना हो। एंड टाइप 2, दीज आर द बिजारे ड्रग, B class A, B for bizarre. These are non-related,
Non related means pharmacological actions of the drug is not related. These are uncommon and unpredictable. Uncommon है and साथ में ये unpredictable, हमें predict नहीं कर सकते. सेम ड्रग वन पेशेंट को रिएक्ट करती है बट सेम ड्रग अदर पेशेंट को रिएक्ट नहीं कर सकती. दीज आर नॉट, इट इज डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ पेशेंट्स ना. इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो हाई होता है कंपेयर टू ए ड्रग ना, ए टाइप ड्रग, टाइप ए टाइप बी. जो बी होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है. इसमें क्या होता है, इनको क्या होता है, एग्जांपल्स है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, जिसकी पेनिसिलिन्स की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, दिस इज द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द टाइप 2 और टाइप बी रिएक्शंस. इसमें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस में जो भी उनके जेनेटिक मटेरियल्स पे या जेनेटिक उस पे डिपेंड करते हैं. इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती हैं सच एज एक्यूट पोरफायरिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, स्यूडो एलर्जी, ये सभी किस में आ जाएंगे, टाइप बी में आ जाएंगे. इसमें हमें क्या करना था, हाउ वी कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, वी कैन विथहोल्ड और अवॉइड इन फ्यूचर if we know that particular drug or penicillin or we have to sulfa allergy or penicillin allergy, then हम उनको रोक दें, स्टॉप कर दें, या इन फ्यूचर हम उनको अवॉइड कर ही लेना. देन टाइप सी, दीज आर द डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड. टाइप सी मीन्स सी फॉर क्रोनिक, उसका निमोनिक क्या है सी का, क्रोनिक. क्रोनिक मीन्स डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड. उसमें डोज से डिपेंड कर देगा और टाइम. अगर हम शुरुआत में अगर हमने 1-2 दिन खाई, देन we don't feel any type of reaction, but if we taken in long term, 1 month, 2 months, or even 1 year, then we feel the adverse reaction. This is the chronic. This is also uncommon and related to cumulative dose. वो cumulative dose पे है, मतलब धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल तक हम कोई पर्टिकुलर ड्रग खाते रहे, उसके बाद वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई. क्यूमुलेट उसका एडिटिव एक्शन आया, ज्यादा ड्रग हो गई, क्यूमुलेट हो गई, और उसके बाद हमें रिएक्शन फील हुआ. एग्जांपल है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सप्रेशन बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड. जब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो हमने देखा कि जो हमारा पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो सप्रेस हो जाता है. इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द डोज और विथहोल्ड और विथड्रॉन और मे हैव टू बी प्रोलॉन्ग. जो भी उनको हम प्रोलॉन्ग समय के लिए ले रहे थे उनको हम विथड्रॉ कर सकते हैं या हम उनके डोज को रिड्यूस कर सकते हैं. डी फॉर डिलेड और टाइम रिलेटेड. दिस इज आल्सो टाइम रिलेटेड, दिस इज आल्सो अनकॉमन, यूजुअली डोज रिलेटेड. ये डोज रिलेटेड से होती है. अकर्स और बिकम्स अपरेंट सम टाइम आफ्टर द यूज ऑफ ड्रग ना. जैसे कि हमारा टिरेटोजेनिसिटी है. एग्जांपल वेजाइनल एड्री कार्सिनोमा विद डाइल स्टिलबेस्ट्रॉल. इनकी वजह से जो टिरेटोजेनिसिटी होती है या कार्सिनोजेनिसिटी होती है, उसकी वजह से इनको डिलेड बोलते हैं. अभी तो आज हमने ड्रग खाई, आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमें उसका असर देखने को मिला, तो वो डिलेड कहलाएगा. और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये ऑफन इंटरएक्टेबल होते हैं. इनको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब रिएक्शन होगी. बहुत लॉन्ग टर्म के बाद, अब बाद में अपने से होती है. इसके बाद है ई, विड्रॉल, एंड ऑफ यूज. ये क्या है, अनकॉमन है. ये भी अनकॉमन है. इनमें क्या होता है, अकर सून आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द. जैसे हम इसको बोलते हैं नशा. जैसे हमें किसी चीज का, चाय का हो जाता है ना नशा सिंपल वे में, या मॉर्फिन, ओपिएट विड्रॉल होता है ना, मॉर्फिन कोई खाता है, कोई नशा करता है, तो उसको उसके बाद जब अचानक से बंद कर देता है तो उसको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं. तो वो जो चीज आती है वो हमारे क्या है, विड्रॉल. जो सिम्टम्स उसको आएंगे, अजीब सा कन्वल्सन्स होंगे, हेडेक होगा, डिफरेंट फीलिंग आएंगी, जो विड्रॉल, उनको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं. तो दैट विड्रॉल सिम्टम्स कम इन ई टाइप और विड्रॉल और एंड ऑफ यूज. जब हम उस ड्रग को एंड कर देंगे उसके बाद वो सब होते हैं. और ये इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, जैसे एकदम से आपने कोई चीज खाई, ठीक है, और खा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस खा रहे हैं, बट आपने कोई भी ड्रग, सपोज मॉर्फिन है, या आप सिंपल सा आप कैफीन चाय पीते हैं ना, उसमें भी कैफीन होता है, तो वो भी सेम फीलिंग दिलाता है. फिजिकल हम डिपेंडेंस हो जाते हैं उस पर. लेकिन जब धीरे धीरे हम उसको अचानक से हमने बंद कर दिया, फिर उसके सिम्टम्स आने लगे, सर दर्द हो रहा है, यार आज तो हमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं, तो उसके बाद क्या करें, उसको हम री इंट्रोड्यूस करें उसको हम, बट
उसको हम फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा नहीं है कि अचानक से हमने छोड़ दिया उसको, हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे तो वो उसके एडीआर नहीं आएंगे, जो सिम्टम्स आ रहे थे वो नहीं आएंगे। एंड एफ इज फेल्योर, थेरेपी फेल्योर, दिस इज कॉमन, अनएक्सपेक्टेड फेल्योर ऑफ थेरेपी। ये कभी कभी होता है कि ये कॉमन है और थेरेपी फेल्योर हो जाएगी। कैसे? इसमें इनएडिक्वेट डोज ऑफ एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना था और उसने सही से काम नहीं किया, इनएडिक्वेट डोज थी, और क्या हुआ, हमें उसने सही से काम नहीं किया और विमेन प्रेग्नेंट हो गई ना। तो इस इज मेनली एंजाइम इंड्यूसर। ये किस वजह से होता है? स्पेसिफिकली एंजाइम इंड्यूसर। जो एंजाइम इंड्यूसर थे, दे हैव इंड्यूस्ड एंजाइम एंड our liver has function speedily so that contraceptive drug metabolized quickly, तो उसने अपना काम ही नहीं सो कर पाया और थेरेपी फेल्योर हो गई। Now this is the diagram which showing, एक्चुअली हमने इतना सब कुछ बात कर लिया कि एडवर्स इवेंट होता है, ये होता है, वो होता है, बट व्हाट आर द एडवर्स इवेंट, व्हाट इज द एडीआर, व्हाट आर द नेगेटिव साइड इफेक्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव साइड इफेक्ट। ये एक सिंपल सा कॉमन चीज है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट आर द एडवर्स, यस, Not movable. हर बार क्यों होता है ऐसा? नाउ इट इज विजिबल? Yes, ma'am. This slide I want to differentiate what is the difference between adverse event, what is the difference between ADR and side effects. All adverse reactions which are unintended and negative effect are known as adverse event। देखिए ये जो ब्लू कलर का है, इसके अंदर हमारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं एंड एडीआर्स हैं। देन इन एडवर्स इवेंट एडीआर्स एंड नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आर इंक्लूडेड। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ना? एडवर्स इवेंट वो इवेंट है जो अनइंटेंडेड एंड नेगेटिव हैं, मतलब जो भी हमें नेगेटिव इफेक्ट फील होता है ड्रग खाने के बाद, वो सभी एडवर्स इवेंट हैं ना। लेकिन in adverse event there is no any causal relationship developed, means drug और उस ड्रग ने ही रिएक्शन किया है, हो सकता है कि जो रिएक्शन हुई हो दूसरी वजह से हो गई हो, दूसरा रीजन हो, उसका दूसरा रीजन हो, वो ड्रग की वजह से नहीं हो, उसमें हम we are failed to develop and causal relationship between the ADR and the drug, then these are the adverse event. If जो भी there is a causal relationship between the ADRs and the drug, means in ADR are those ADRs which we have to say that there is a causal relationship का मतलब है कि हमने जो भी ड्रग खाई थी, उस ड्रग के बाद से जो भी ड्रग खाई है, जो रिएक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर ड्रग की वजह से हुआ है, दैट इज द एडीआर। ठीक है, अब साइड इफेक्ट, और ये ड्रग के प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होता है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट आर टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऑलवेज साइड इफेक्ट्स आर नॉट नेगेटिव, समटाइम्स दे आर पॉजिटिव ना। जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे एडवर्स इवेंट के अंदर आएंगे, और उनमें क्या होता है, दे आर द सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल कॉज। जो हमारे ड्रग की प्राइमरी मैकेनिज्म होती है और कुछ सेकेंडरी मैकेनिज्म होती है, तो ड्रग की जो सेकेंडरी मैकेनिज्म होती है उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस शो करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं। उसमें नेगेटिव साइड इफेक्ट, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव हैं साइड इफेक्ट्स हैं, एडीआर हैं, एडवर्स इवेंट, ये सारे एडवर्स इवेंट हैं, बट समटाइम्स साइड इफेक्ट्स आर पॉजिटिव, सच एज one example is constipation due to morphine. मॉर्फिन का जो साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, बट इफ अ पेशेंट समटाइम, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको ड्रग फायदा नहीं करती है, या वो मॉर्फिन का एडिक्टिव है या कुछ भी, तो उसको डायरिया का, अगर किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम है, साथ में पेन भी है, उसको पेन, सीवियर पेन है और उसको डायरिया की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या देते हैं,
उसको मॉर्फिन दे देते हैं। तो मॉर्फिन देने से क्या होगा, उसका पेन भी रिलीफ होगा, साथ में उसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। तो वो डायरिया था, तो इसकी वजह से उसको स्टमक की प्रॉब्लम चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो एडीआर है उसमें देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द एडीआर। ओके, नाउ दिस इज क्लियर और नॉट? हेलो, यस मैम, क्लियर। क्लियर है ना? नाउ दिस इज द प्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटेबिलिटी। अब हमने देखा कि कॉजल रिलेशनशिप हो गया। जब कॉजल रिलेशनशिप हो गया, हमें पता चल गया कि जो एडवर्स इवेंट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, और साइड इफेक्ट्स क्या है। लेकिन फिर हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं और उनको हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग उसको हम कैसे प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करते हैं, उसको सी ओम्स की गाइडलाइन है। ठीक है, सी ओम्स की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हैं कि कोई भी ड्रग को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइप ए है वो क्या है, हमारी प्रिडिक्टेबल है। जो टाइप ए की का है वो हमारी प्रिडिक्टेबल है, और उसके हिसाब से उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में दिया है कोई भी किसी भी ड्रग को, व्हेन वी हैव सेड दैट इट इज वेरी कॉमन और इट इज कॉमन और इट इज अनकॉमन, रेयर और वेरी रेयर। ठीक है, वेरी कॉमन मीन्स 10 पेशेंट हैं, उसमें से एक पेशेंट को और एक पेशेंट से ज्यादा को पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ और पर्टिकुलर एडीआर हुआ, देन वी कैन से दैट इट इज प्रेडिक्टेबल, इट इज वेरी कॉमन। अगर 10 पेशेंट, हमने 10 पेशेंट को दवा खिलाई और एक पेशेंट को रिएक्शन हुई, या एक पेशेंट से ज्यादा को, 10 में से एक पेशेंट या एक पेशेंट से ज्यादा को रिएक्शन हुआ, देन इट कम्स इन वेरी कॉमन कैटेगरी। ओके, एंड इट इज प्रेडिक्टेबल। नाउ कॉमन में क्या है, इफ there are 100 peoples और उन 100 people में एक को या एक से ज्यादा को, एक से या एक से ज्यादा को रिएक्शन हुआ ना, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉमन कैटेगरी है। अनकॉमन में क्या होगा, 1000 पीपल में हम वही चीज अप्लाई करेंगे। 1000 पीपल में, कि 1000 पीपल में एक या एक से ज्यादा, ठीक है, और 100 से भी के बीच का जो ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो 1000 से ज्यादा यानी कि 100 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 100 से कम होना चाहिए ना, तो उसमें अनकॉमन होगा। यानी कि अगर हमने 1000 को दिया और 1000 में 1000 से ज्यादा को होगा और लेकिन 100 से कम को होना चाहिए, तो वो अनकॉमन है। रेयर में क्या होगा, एक पीपल या एक पीपल से ज्यादा को अगर हमने दिया और उस, तो वो रेयर कंडीशन में आएगा। और वेरी रेयर में क्या, कि अगर हमने 10,000 को दिया तो 10,000 में केवल एक को हुआ और एक से या तो किसी को नहीं हुआ या एक हुआ 10,000 पीपल में, तो वो नॉन प्रिडिक्टेबल के केस में आएगा। और वेरी रेयर, तो वेरी रेयर और रेयर में क्या होता है कि 10,000 से पीपल को, रेयर में कि 10,000 में एक से ज्यादा को होगा, और वेरी रेयर में 10,000 में 10,000 पीपल में एक पीपल को रिएक्शन हुआ या एक भी पीपल को रिएक्शन नहीं हुआ, तो वह वेरी रेयर हो जाएंगे। और यही क्राइटेरिया हमारा, ये जो क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया पे कोई भी ड्रग मार्केट से विड्रॉ होती है। कोई भी ड्रग कब विड्रॉ होती है, कैसे हम पता करेंगे कि क्या हुआ, तो जब कम से कम हमने 100 पीपल को, अगर वो कॉमन साइड इफेक्ट दिखा रहा है, अगर वो कॉमन साइड इफेक्ट दिखा रहा है और प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तब तो ठीक है। जैसे सिंपल सा है कि फीवर हो रहा है, सबको कॉमन है, तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेडिक्ट हो गया। जैसे सिंपल सा भी वैक्सीन के केस में कि ये प्रेडिक्ट था, सबको हो रहा है, ये तो वेरी कॉमन में आ गया था कि 10 लोग को दे रहे हैं, 10 लोग लगवा रहे हैं, उसमें ऐसे कम से कम 5-6 को 7 को हो ही रहा था फीवर, तो वो वेरी कॉमन में आ गया। लेकिन अगर कोई भी ड्रग इन क्राइटेरिया के साथ साथ में एक चीज और डिपेंड करता है, वो है आपकी बेनिफिट रिस्क रेशियो। अब हमें ये देखना होता है कि कोई ड्रग है, उसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उसमें उसके रिस्क की परसेंटेज क्या है, उसकी रिस्क की कितनी परसेंटेज है। अगर वो बहुत ज्यादा रिस्केबल है, सीरियस साइड इफेक्ट शो कर रहा है, तो फिर हम वो चाहे
कॉमन की ही कैटेगरी में क्यों ना हो या रेयर की ही कैटेगरी में क्यों ना हो, हम उसको क्या है विड्रॉ कर लेंगे मार्केट से। बट अगर वो ठीक है, उसका जो रिस्क रेशियो है, बेनिफिट रिस्क रेशियो, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बेनिफिशियल ज्यादा है, और हम उसके साइड इफेक्ट्स को हम बियरेबल हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हम बियर कर सकते हैं, तो वो फिर मार्केट में रहती है। साथ में उसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, साथ में उसके कुछ फॉर्मुलेरी में चेंज किया जाता है, और वो जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज उसके साथ एक और कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि इसके साथ आप ये लेंगे तो हम ये चीजें अवॉइड हो सकती हैं, ठीक है, अगर उसका बेनिफिट रिस्क रेशियो ज्यादा होता है तो। सर जो भी ये मैं बता रही हूँ ना, ये जब आप जाएंगे फिर थोड़ा सा क्लिनिकल बेस्ड है ये सारी चीजें, तो कैसे हम कोई चीज प्रिवेंटिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, कैसे हम कोई चीज प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज क्या मीन्स कैसे हम कोई भी एडीआर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली प्रिवेंटेबल होगा या प्रोबेबली होगा या नॉन प्रिवेंटेबल होगा, तो उनके सब के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अब एक पूरा जैसे कि हम कोई भी लैब में जाते हैं तो कोई भी हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, कि जब हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो हम पहले इंग्रेडिएंट 1 डालना है, फिर इंग्रेडिएंट 2 डालना है, फिर 3 डालना है, उसके बाद ही ये प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके बाद ही हमारा पर्टिकुलर चीज बनेगी, या हम अपने जो भी हम फॉलो हर चीज की एसओपी फॉलो करना होता है। उसी तरह इस एडीआर में भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उन्हीं के क्राइटेरिया पे हमें पता करना होता है कि हम कैसे कोई चीज ये प्रिवेंटिबिलिटी के क्राइटेरिया में आएगी कि प्रेडिक्टेबल है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि कोई भी ड्रग प्रिवेंटेबल है या नहीं, उसका उस क्राइटेरिया को सुकमार्क एंड थॉर्नटन स्केल बोलते हैं। उसके हिसाब से 3 क्राइटेरिया थे कि वो है कि नहीं। सेक्शन ए में वो क्या कहता है कि बोथ हैव 5 क्वेश्चंस। सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग अलग चीजें होती हैं, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसके बाद वो नहीं है क्या, ये है सेक्शन ए में। थोड़ा सा स्लाइड्स इधर उधर हो गई, सॉरी। सुकमार्क एंड थॉर्नटन स्केल में क्या है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं। इन 5 क्वेश्चन में अगर ये सारे इफ ऑल द क्वेश्चंस आर नेगेटिव, जो भी ये 5 क्वेश्चंस हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट was there a history of allergy or previous reactions of, हम उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, कैसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा उनका हम हिस्ट्री लेंगे। अगर ये सारे निगेटिव हैं तो हम सेक्शन बी में चले जाएंगे, और अगर सेक्शन बी के भी सारे निगेटिव हैं तो फिर हम सेक्शन सी में चले जाएंगे, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि नॉन प्रिवेंटेबल एडवर्स इवेंट है। और ये क्या है, नॉन प्रिवेंटेबल एडवर्स इवेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है हार्टविग एंड सीगल सीवियरिटी स्केल। कोई भी एडीआर कितना वो सीवियर है, देखो सीरियसनेस इज अनदर थिंग एंड सीवियरिटी इज अनदर थिंग। कोई भी वो चीज सीरियस है कि सीवियर है, ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। तो जो सीवियर है, कोई ड्रग सीवियर है कि नहीं, उसका जो क्राइटेरिया है वो हार्टविग एंड सीगल सीवियरिटी असेसमेंट स्केल के थ्रू होता है। इसमें कई सारे लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं, और इन लेवल्स के हिसाब से 7 टाइप के, जैसे अभी 5 टाइप के क्वेश्चन थे, 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था थॉर्नटन स्केल को, वैसे ही यहाँ पर 3 स्केल्स होते हैं। उन 3 स्केल्स में 7 लेवल बनाए गए हैं। तो पहला है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। वो रिएक्शन जो हमारी है माइल्ड है कि मॉडरेट है एंड सीवियर है। तो अगर लेवल 1 होगा, एन एडीआर अकर्ड बट रिक्वायर्ड नो चेंज इन ट्रीटमेंट विद सस्पेक्टेड ड्रग। अगर कोई भी जो ड्रग है एडीआर हुआ है, वो क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है उसके सस्पेक्टेड ड्रग से, तो वो लेवल 1 में रहेगा। एंड लेवल 2 क्या है, एडीआर रिक्वायर्ड दैट ट्रीटमेंट विद सस्पेक्टेड ड्रग इज हेल्ड डिसकंटिन्यूड और अदरवाइज चेंज्ड, नो एंटीडोट और अदर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड वाज रिक्वायर्ड, सो नो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टे। अगर उसमें कोई स्टे का जो हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज नहीं हुआ है या जो भी है, अगर ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, इनके हिसाब से अगर हम माइल्ड में क्या आता है 1 और 2 आता है, अगर ये जो माइल्ड ये दोनों केसेस हुए तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन इज माइल्ड, बट
मॉडरेट में लेवल 3 एंड 4 आते हैं, लेवल 3 एंड 4 आएंगे। द ADR रिक्वायर्ड दैट ट्रीटमेंट विद द सस्पेक्टेड ड्रग बी हेल्ड डिसकंटिन्यूड और अदरवाइज चेंज्ड, या तो चेंज हो गई या उसका जो हमारा एंटीडोट है वो रिक्वायर्ड है, या उसकी जो लेंथ की स्टे है उसको हमें इंक्रीज नहीं करना है, या तो चौथा क्या है, हम जो लेवल 3 है वो उसकी हम लेंथ को स्टे को क्या है इंक्रीज कर दें एट लीस्ट 1 डे, मीन्स 24 आवर के लिए। अगर हमने उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया तो हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन मानते हैं। कभी कभी जनरली ये क्वेश्चन आता है कि ड्रग हमने लिया और हम हॉस्पिटल गए, हमें हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन हमें हो गया, तो क्या वो सीरियस है? नहीं। अगर हमने 24 आवर्स तक वहां पर रुका तभी वो सीरियस कहलाएगा। अगर हमने बस गए और हमने ट्रीटमेंट करा के आ गए, 1 घंटे उसने अपने डॉक्टर ने अपने विजिबिलिटी में रखा और बोला कि बस देख रहे हैं हम आप ठीक हैं या नहीं, और 1-2 घंटे रुके और चले आए, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं माना जाता है। वो केवल और केवल क्या माना जाता है? प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन कब माना जाएगा? जब वो 24 आवर एटलीस्ट 24 आवर के लिए उसको वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। तो अगर 3 और 4 कंबाइंड होंगे, 3 और 4 आएंगे तो वो मॉडरेट होगा। इसके बाद 5 और 6 और 7, जैसे 7 में स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा जो रहता है वो है डेथ। अगर डेथ हो गई तो ये सब चीजें केसेस में हम क्या कहलाएंगे? वो सीवियर आता है। ठीक है, तो हर्टविग एंड सीगल सीवियरिटी स्केल है, इसके ये साथ इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते कि ये स्केल है, ये दिस इज गिवन बाय हर्टविग एंड सीजल, उन्होंने ये स्केल दिया था। इस स्केल के क्राइटेरिया पे ही हमें हर चीज अपने जितने भी रिएक्शन इन फ्यूचर अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं एडीआर पर या कोई देखना चाहते हैं तो आपको सीवियरिटी निकालना है, तो आप यही स्केल्स पे रखकर आपको पता करना होगा, इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर आपको पता करना होगा कि ये सीवियर है और नॉट सीवियर है। अब ये तो हमारा हर्टविग ने दिया था, लेकिन WHO ने भी अपना सीवियरिटी का स्केल दिया है, एक नॉन माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड डेथ। उसने नॉन माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर एंड डेथ, उसमें भी यही कुछ क्राइटेरियाज हैं जो उसमें है दिए गए हैं। नॉन में क्या है? आउटकम वाज नॉट सिम्टोमैटिक, जो आउटकम है वो सिम्टोमैटिक नहीं है, और नो सिम्टम्स वे आर डिटेक्टेड एंड नो ट्रीटमेंट वाज रिक्वायर्ड। उसमें कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया ना पड़ा, कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो वो सीवियर नहीं होगा, बस अपने आप हुआ और खत्म हो गया। माइल्ड में क्या है? पेशेंट आउटकम वाज सिम्टोमैटिक, उसने बहुत ज्यादा सिम्टम्स शो किए, सिम्टम्स वेयर माइल्ड, लॉस ऑफ फंक्शंस और हार्म वाज ईदर मिनिमल और इंटरमीडिएट, बट शॉर्ट टर्म एंड नो इंटरवेंशंस और ओनली मिनिमल इंटरवेंशंस। एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन, हमें पेशेंट गया उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको हमें एक्स्ट्रावेंशन में रखा गया है, इन्वेस्टिगेशनल उसको किया गया, उसके कुछ ब्लड चेक कराने पड़े, या रिव्यू के लिए रिव्यू के लिए, या हमने उसको माइनर ट्रीटमेंट दिया, तो वो सब माइल्ड केसेस में आएगा। मॉडरेट में क्या होता है? हमारा जो पेशेंट है वो सिम्टोमैटिक तो है, सिम्टोमैटिक हमारा माइल्ड में भी है, इसमें भी सिम्टोमैटिक है, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें मिनिमल इंटरवेंशन से और साथ में हमें कुछ ऑपरेटिव सिंपल सा कुछ ऑपरेशन करना पड़ा, कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर करना पड़ा, हमें कुछ अलग से थेरेप्यूटिक चेंजेस करने पड़े, उसको हमने अलग से कुछ मोर दवाई एक्स्ट्रा मेडिकेशंस दिया, उसमें हमने साथ में मॉडरेट में क्या है, साथ में एक चीज क्या है, जो ये सब चीजें तो माइल्ड में भी हो रही थी कि हमने ट्रीटमेंट दिया या कुछ, लेकिन इसमें क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन हमारा बढ़ जाता है, लेंथ ऑफ इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टे और कॉज्ड परमानेंट और लॉन्ग हार्म और लॉस ऑफ फंक्शन। उसमें क्या होता है, मॉडरेट में हमें हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या हमें क्या हो गया, कुछ परमानेंट या शॉर्ट टर्म के लिए हमें हमारे कुछ बॉडी के फंक्शन में कुछ लॉस हो गया, तो वो सब हमारा मॉडरेट में आता है। सीवियर के केसेस में जो हमारा सिम्टोमेटिक है ये सब कुछ रहेगा, साथ में लाइफ सेविंग और अदर मेजर मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं। शॉर्टेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मेजर परमानेंट लॉन्ग हार्मलेस हार्म और लॉस ऑफ फंक्शन, मैंने परमानेंटली ही हमारा कुछ जैसे हाथ पैर टूट गया, तो अब वो तो मॉडरेट के केस में आएगा कि वो चलो बंद हो जाएगा, थोड़ा हार्म हुआ लेकिन वो ठीक है, फ्रैक्चर हुआ, जैसे कुछ कुछ बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे स्टिलबेस्ट्रॉल है या कई सारी चीजें ऐसे हैं, तो उनके बाद ये हमारा जो एंटासिड्स हैं, रैनिटिडीन है, इसको हम लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो क्या है, ये कैल्शियम
को डिग्रेड करता है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो सब मॉडरेट में आएगा, चलो ठीक हो गया। लेकिन सिवियरिटी में क्या, अब हमारी आई डैमेज हो गई, सपोज हम विजन लॉस हो गया, अब वो हमारा वापस नहीं आ सकता है ना, या हमारा कुछ ऐसा हो गया कि अब वो ठीक ही नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म या लॉस ऑफ फंक्शंस हो गया, अब हम वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, हमारा बेबी का डेथ ही हो गया ना, तो वो सारी चीजें सिवियर में आएंगी। और डेथ में तो हाई है कि कुछ भी ये सारी चीजें होंगी और डेथ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर नन माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर एंड डेथ। ये सिवियरिटी असेसमेंट है, ठीक है। What are the emerging scope of pharmacovigilance? Emerging scope क्या है pharmacovigilance के? irrational use। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे गांव के लोग जो होते हैं वो ना क्या करते हैं कि एक डॉक्टर से दवा लाए, ठीक नहीं हुआ रहा था, देन अगेन गो टू अनदर डॉक्टर, क्वैक्स के पास गए और दूसरी दवा ले आए, और उन्होंने क्या किया, दे हैव नॉट डिसकंटिन्यूड द अर्लियर मेडिकेशन एंड टेकन बोथ मेडिकेशंस सेम टाइम। तो वो हो जाता है कभी कभी फिजूल में ही एंटीबायोटिक्स, जो इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का आजकल होता है, तो इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं, नीड नहीं है बट दे रहे हैं, वायरल में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें इरेशनल यूज कहलाता है। ओवरडोज, एक्यूट एंड क्रोनिक पॉइजनिंग। अब जो PVPI या जो फार्माकोविजिलेंस है इरेशनल यूज को मना करता है, साथ में वो कहता है कि अब हम जो भी हमें रिपोर्टिंग करनी है ओवरडोजेस की भी करनी है, ठीक है, या एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग की आप हमें रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल ड्रग की एक बार खाया हुआ रिएक्शन तो हो गया, नहीं, अगर किसी ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया ड्रग की वजह से, तो उसकी वजह से भी तो डिफरेंट वो होंगे, जैसे किसी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई तो उसमें क्या होगा, पिन पॉइंट इफेक्ट है, वो सारी चीजें आएंगी, कन्वल्सन्स होंगे, दम ब्रीदिंग शॉर्ट होगी, स्वेटिंग होगी, तो वो सारी चीजें क्या है। अब जब फास्फेट पॉइजनिंग होगी तो उसमें, या क्रोनिक कोई बहुत लॉन्ग टर्म से कोई ड्रग हम खा रहे थे उससे की वजह से कोई पॉइजनिंग हो गई, उसकी वजह से हमें कोई अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा, तो वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट करनी है। साथ में हमें पॉलीफार्मेसी एंड देयर ड्रग इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ड्रग हर्बल, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ड्रग फूड। तो वो सारे इंटरेक्शन की वजह से भी अगर हमें कुछ लगता है कि सर हमने तो पहले खाया था लेकिन हमने आज फिश खाई और हमने अपनी ड्रग खाई तो हमें ये रिएक्शन हुआ, और फिर कभी कभी होता है कि फिर अगेन हमने नेक्स्ट डे फिश नहीं खाई और ड्रग खाई तो ठीक है, फिर अगेन 4-5 दिनों बाद फिर फिश बना और फिर हमने खाई तो फिर सेम रिएक्शन हुआ। तो वो अगर आपको ऐसा कभी फील होता है कि हाँ हमें इस ड्रग का, इस फूड से या इस हर्बल ड्रग से इंटरेक्शन हो रहा है, देन वी शुड आल्सो रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर ADR। या पॉलीफार्मेसी की 2 ड्रग खा रहे हैं और हमें लग रहा है कि जब हम ये 2 ड्रग खाते हैं तो ही होता है, तो वो सब चीजें हमें रिपोर्ट करनी है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड हर्बल मेडिसिन विद अदर मेडिकेशन कॉज इंटरेक्शंस। वही चीज है कि हर्बल और उसके साथ भी करना है। जो इलीगल सेल्स ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग एब्यूज है, ओवर द इंटरनेट एंड एब्यूज, मिसयूज, ये सारी चीजें अभी हमको रिपोर्ट करनी है कि हम जो ऑफ लेबल यूज, बहुत सारे लोग ऑफ लेबल यूज करते हैं, उसमें यूज नहीं करना चाहिए बट ऑफ लेबल यूज हो रही है, पर उसकी वजह से कोई ADR होता है, या सेल्फ मेडिकेशन हो गया, जो हम OTC ड्रग्स ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन हो गया, या हमने कोई सब स्टैंडर्ड काउंटरफिट मेडिकेशन खाई, मेडिकेशन एरर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें लगता है अनइंटेंडेड है, हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है, और या उस ड्रग की लैक ऑफ इफिकेसी, उसके कोई इफिकेसी ही नहीं आ रही। अब बहुत सारी ड्रग का तो हमें नहीं पता चलता, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है हम साइकोलॉजिकल होता है, हमने दवा खाई तो हमें लगता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, बट वो साइकोलॉजिकल होता है, उसमें कोई इफिकेसी नहीं है। बट बहुत सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स में होता है ना, उसमें दिया जाता है, तो वो सब चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें लैक ऑफ इफिकेसी कब पता चलेगी? व्हेन वी नो दैट लैक ऑफ इफिकेसी इमीडिएटली। अगर हमने कोई जनरल एनेस्थेटिक्स लिया है ना, और हमने जनरल एनेस्थेटिक को दिया लेकिन वो एनेस्थीसिया ही नहीं हो रहा है, वो पेशेंट बेहोश ही नहीं हो रहा है, तब हमें पता चल गया कि ये लैक ऑफ इफिकेसी। मैंने अपनी कई बार जनरल एनेस्थीसिया का क्योंकि केस रिपोर्ट किए हैं कि उनमें लैक ऑफ इफिकेसी है, बट अदर ड्रग का लैक ऑफ इफिकेसी नहीं रिपोर्ट हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, पेशेंट को साइकोलॉजिकल लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है, और वो सच में
ठीक हो जाता है। जो डमी प्रिपरेशन वो डमी उसकी तरह काम करता है, ड्रग की तरह, ठीक है। नाउ इन द लास्ट, अब हमें सब कुछ पता चल गया कि हम फार्माकोविजिलेंस क्या है, कैसे होता है, इंडिया में उसकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, वो CDSCO है, और उसके बाद जो और कौन अथॉरिटी इंडिया में काम करती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए, वो है हमारा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो IPC नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। गाइडलाइन कौन बनाता है? CDSCO बनाता है, सब कुछ। लेकिन ये सारी चीजें अडॉप्ट कहाँ से हुई ना, ये सारी चीजें कहाँ से अडॉप्ट हुई? तो ये जो सारी चीजें हैं, जो एडवांसमेंट अभी चल रहा है हमारे उसमें फार्माकोविजिलेंस में, ये सारे ICH की वजह से है। ICH और साथ में इसमें COMS काम करता है। वो ये दोनों अपने वर्किंग ग्रुप, जो COMS के वर्किंग ग्रुप हैं, वो सब काम करते हैं, और उसके बाद ICH के साथ कोलैबोरेट करके, WHO के साथ कोलैबोरेट करके ये फाइनली ये गाइडलाइंस बनाते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज या तो अपना उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, या एज इट इज उन्हीं को फॉलो कर लिया जाता है। तो जो ICH की गाइडलाइन है फार्माकोविजिलेंस की, वो कौन सी है? इफिकेसी की जो भी गाइडलाइंस के अंदर वो आते हैं, E2A से E2F, means E2A to E2F guidelines given by the ICH are the pharmacovigilance guidelines. And now I'm not going deep on that particular guideline because these guidelines are so large ना। particular guideline अपने आप में बहुत वास्ट है, तो हम पूरा उसमें नहीं जा रहे हैं। Here we have only known about that name of that particular guidelines of the pharmacovigilance given by the ICH, that is E2A clinical safety and data management। इसमें हमें क्या देखते हैं? definitions and standards for expedited reporting, ठीक है। E2B में ये सब कंपनीज की वजह से होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो MAH के केसेस होते हैं, वो सब इन गाइडलाइंस के थ्रू जनरली किए जाते हैं। E2B में क्या है? क्लिनिकल सेफ्टी एंड डेटा मैनेजमेंट, किसके लिए? डेटा एलिमेंट्स फॉर इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, E2B ICSR, जो कि हम लोग करते हैं VG फ्लो में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो इंडिया में जो भी हम लोग ICSR भेजते हैं, हम लोग बोल रहे हैं ना ICSR हम लोग भेजते हैं, रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो किस सॉफ्टवेयर से भेजते हैं? तो उसका नाम है VG फ्लो, ठीक है, उसका नाम है VG फ्लो। जैसे कि जो WHO और या जो अदर कंट्रीज हैं, वहां पर क्या है? VG बेस है, ठीक है। वहां पर E2B R3 चल रहा है, हमारे यहाँ पे E2B R2 अभी चल रहा है। तो जो भी ये सब हैं VG फ्लो से आपको इतना पता होना चाहिए कि VG फ्लो एक सॉफ्टवेयर, आप उसके बारे में और डिटेल में देख लीजिएगा कि VG फ्लो सॉफ्टवेयर क्या है। VG फ्लो सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द इंडियन एंड अदर कंट्रीज आल्सो which are developing countries, they also used VG flow software, ठीक है। तो VG flow software से सारे ICSR हम लोग जो भी फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स होते हैं या अदर होते हैं, वो करते हैं यहाँ पर। इसके बाद यह है E2B R3 हो गया। E2B R3 का EWB और IWB ये वर्किंग ग्रुप्स हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ICSR, जो ICSR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है, ये E2B R3 में होता है। और E2C R2 में क्या होता है? पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट, पहले इसको PSUR बोलते थे, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, बट अब इसको पीरियोडिक PSUR को हम बोलते हैं पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। E2D में क्या होता है? पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, डेफिनेशन है। यस मैम, स्लाइड मूव करा दो। अभी शो हो रहा है? यस मैम। E2D, देन E2D1, E2D R1, इसमें जो वर्किंग ग्रुप हैं वो है पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग। और E2E सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो फार्माकोविजिलेंस की प्लानिंग होती है
वो किस गाइडलाइन के में होती है, तो E2E उसका होता है। और जो DSUR होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है या जनरल नॉलेज के हिसाब से कि E2F क्या है, तो डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट होता है, DSUR होता है, PSUR E2C होता है। जो PSUR पहले था, अभी वो पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्युएशन हो गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग गाइडलाइन है। इसके बाद ये जो गाइडलाइन है हम इनको भेजते हैं, तो लेकिन हम कैसे पता करेंगे, हमें उसका कुछ तो होगा ना, जैसे कि हमने शुरुआत से पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, एक डिक्शनरी हुई, हमने डिक्शनरी से अलग अलग वर्ड्स यूज किए। ऐसे ही एक मेडिकल डिक्शनरी होती है, वो होता है मेड्रा। द स्लाइड इज विजिबल और नॉट? विजिबल है मैम। विजिबल है ना? तो ये मेड्रा की स्लाइड है। इसमें मेड्रा का फुल फॉर्म होता है हमारा मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, मेड्रा क्या होता है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज होता है, दिस इज अ इंटरनेशनल मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अभी पहले क्या होता था कि बहुत पहले जब ये सब नेट नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपने जो भी व्यूज होते थे वो एक कॉपी पे लिखते थे, और जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते थे या जो डॉक्टर्स होते थे या जो भी लोग होते थे, तो वो क्या है, एक डायरी ले जाते थे ना, इतना पूरा बंडल ले जाते थे, और अपना कि हमने ये स्टडी किया है, इसका ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट, तो वो शेयर करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, तो डिफरेंट कंट्रीज का अपना डिफरेंट वो था कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हम ऐसे करेंगे। वैसे तो शुरुआत के केसेस में किसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, सब अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखता था। अब किसी ने, जैसे फीवर है, किसी ने फीवर लिखा, ठीक है, अब किसी ने इंडिया में उसको हमने बुखार लिख दिया या ज्वर लिख दिया, तो अब वो समझ ही नहीं पाते थे कि व्हाट इज द ज्वर या व्हाट इज द फीवर। एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। तो दूसरे लैंग्वेज में, जिनका दूसरा लैंग्वेज था, वो उसको और किसी लैंग्वेज से बोलते थे कि ये हुआ। तो सब लोग ना बहुत कंफ्यूज होते थे। वो डेटा तो एक्सचेंज कर लेते थे, बट दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एनालाइज दैट डेटा कि ये क्या लिखा है उन्होंने, ये क्या लिखा है। और पहले के जमाने में फोन भी इतना नहीं, तो लेटर से लिखते थे कि आपने यहाँ क्या, तो वो सब बहुत लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। उसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो गाइडलाइन COMS की तरफ से गाइडलाइंस बनाई गई, और कुछ एक डिक्शनरी बनाई गई जिसको मेडिकल डिक्शनरी बोलते हैं, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज। उसमें क्या था, उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई कि फीवर के लिए ये टर्म ही यूज होगा, अगर इस टाइप का फीवर है तो ये टर्म यूज होगा, इस टाइप सेकेंड टाइप का बैक्टीरियल फीवर है या वायरस की वजह से फीवर, तो डिफरेंट उन्होंने उसमें टर्म्स दिए, उसके डिफरेंट सिस्टम ऑर्गन क्लास बनाए। सिस्टम ऑर्गन क्लास मतलब हमारे बॉडी के हिसाब से 27 उसमें सिस्टम ऑर्गन क्लास बनाए गए, ठीक है, 27 सिस्टम ऑर्गन क्लास बनाए गए। फिर पूरा उसका मेड्रा की हियरार्ची है, वो मैंने शायद यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, हाँ वो फिर थोड़ा सा अंदर का प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मतलब फिर मेड्रा में उन्होंने एक डिक्शनरी बना दी जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज के लिए हो जाती है, उसमें डिफरेंट मेडिकल टर्म्स दे दिए गए, ठीक है। फिर उसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छा ये चीज लिखा है, इसका मतलब फीवर है, इसका मतलब हेडेक है। तो अब एक ही डिक्शनरी हो गई, तो उसी डिक्शनरी को इंटरनेशनली सभी लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ जो मेड्रा है वो ईयर में 2 बार, मार्च में और सितंबर में अपडेट होता है। जो करंट वर्जन है इसका 24.0 वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या गवर्नमेंट उसके लिए फ्रीली है, बट अगर कोई चाहता है इसके बारे में सोचना समझना, तो वो उसको एसेस कर सकता है बाय पेइंग सम पेमेंट, ठीक है। अब ये कुछ व्हाट इज द सिनेरियो, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे कोई फार्माको विजिलेंस हमारे इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पर 5 कंट्रीज के मैंने दिखाए हैं कि कौन कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में वो कौन है, CDSCO, यूनाइटेड किंगडम में MHRA, यूनाइटेड स्टेट्स में FDA, कनाडा में हेल्थ कनाडा एंड यूरोपियन में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं।
फार्माकोविजिलेंस रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन है इंडिया में? इंडिया में एनसीसी, पीवीपीआई, आईपीसी है। यूनाइटेड किंगडम में सीएचएम, सीडीआर, ये सब अलग अलग है। हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इंडिया में जो फार्माकोविजिलेंस की रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो कौन है? नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। गाइडलाइन कौन? यस मैम स्लाइड मूव करा दो। ओहो बेटा ये क्या हो रहा है? नाउ इट इज शोइंग। यस मैम। हाँ, ये जो स्लाइड शो हो रही है वो ये बता रही है कि डिफरेंट कंट्रीज में फार्माकोविजिलेंस के लिए क्या गाइडलाइन है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, उनका इंस्पेक्शंस कैसे होता है, उनकी गाइडलाइन कैसे बनती है, वो सारा चीज इसमें बताया गया है। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो क्या है? इंडिया में सीडीएससीओ है, ठीक है। और हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा इधर नहीं जा रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया में सीडीएससीओ है, जो उसके फार्माकोविजिलेंस रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इंडिया में, वो कौन है? हमारा एनसीसी, पीवीपीआई। और जो गाइडलाइन फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है। जो न्यू ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल वाई, हम आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा या भी नहीं पढ़ा होगा, शायद फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा होगा ना। एंड कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ये सारे शेड्यूल्स पढ़ते हैं? उसमें सारा रहता है। तो शेड्यूल वाई में हम नई ड्रग का जो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में होता है वो सब हम शेड्यूल वाई में पढ़ते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होती है? वाया पेपर। हम इंडिया में हम कैसे कोई भी एडीआर रिपोर्ट कर सकते हैं? वाया पेपर। सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म है, वो हमने बताया है, या तो मोबाइल ऐप के द्वारा या तो ईमेल के द्वारा, और आल्सो बाय फोन, वाया फोन से भी हम कर सकते हैं, उसका टोल फ्री नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और फार्माकोविजिलेंस इंस्पेक्शन क्या मैंडेटरी है? हमारे यहाँ इंडिया में तो अभी मेंशन नहीं किया गया है कि वो मैंडेटरी है कि नहीं, बट अदर कंट्रीज में ये चलता है, ठीक है। और फिर फार्माकोविजिलेंस जो ऑडिट होता है वो हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन और कंट्रीज में ये फार्माकोविजिलेंस चल रहा है। और कंट्रीज में जो क्या है, फार्माकोविजिलेंस का ऑडिट टाइम टू टाइम होता रहता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो सीरियस एडीआर रिपोर्टिंग टाइम है, ये नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को दिख रही है ना? यस मैम। हाँ, जो सीरियस एडीआर रिपोर्टिंग टाइम है हमारे इंडिया में वो क्या है? 24 आवर है। अगर किसी को भी कोई सीरियस एडीआर रिपोर्टिंग टाइम हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पर सबकी बात कर रहे हैं। जो अगर कोई भी सीरियस एडीआर रिपोर्टिंग है तो हमारे यहाँ पे 24 आवर में करना होता है। लेकिन अदर उसमें जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहां पर 15 कैलेंडर डेज में करना होता है। यूनाइटेड स्टेट में 15 कैलेंडर डेज में करना होता है अकरेंस ऑफ एडीआर, ठीक है। और सब जगह पे 15 डेज में करना है, बट हमारे यहाँ पर सीरियस एडीआर की है तो 24 आवर में हमने बोला है कि करना है, लेकिन लोग करते हैं नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं ना। तो 24 आवर्स के जो रूल है वो है 24 आवर्स के अंदर हमें करना होता है। जो डेटाबेस है हमारा वो WHO ICSR का डेटाबेस बीजी बेस में हम लोग WHO को दे, जो WHO हमसे लेता है वो बीजी बेस ही लेता है, ठीक है। इन और अदर्स में यूनाइटेड किंगडम में है क्या है? येलो कार्ड डेटाबेस है। यूनाइटेड स्टेट में फार्स है जो FAERS डेटाबेस है। कनाडा में कनाडा विजिलेंस एडवर्स रिएक्शन है। और यूरोपियन एजेंसीज में यूड्रा विजिलेंस है। ये भी थोड़े से नाम, यूड्रा विजिलेंस कहाँ पे है तो ये यूरोपियन उसमें होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्म, हमारे यहाँ पर 2 टाइप के रिपोर्टिंग फॉर्म है। एक तो सस्पेक्टेड एडीआर जो कि कंज्यूमर के लिए होता है, वो डिफरेंट वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, अलग अलग 9 लैंग्वेजेस में है अभी फिलहाल तो डिफरेंट वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में ये सस्पेक्टेड एडीआर फॉर्म है। और साथ में जो सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म है वो कंज्यूमर्स के लिए है, और एक किसके लिए है? यहाँ पर कंज्यूमर ही सॉरी हो गया यहाँ, और ये किसके लिए है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है और कंज्यूमर्स के लिए है, 2 के लिए है। और यूनाइटेड किंगडम में तो येलो कार्ड से होता है। यूनाइटेड स्टेट में 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर 3500, फॉर्म नंबर 3500A एंड 3500B, वहां पर 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड कनाडा में फॉर्म फॉर सस्पेक्टेड एडीआर होता है, और यूरोपियन में ICH E2B R3 ICS फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम
ये इनका जो पोर्टल है वहां से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंडिया में जो पीएसओ पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट सबमिशन है, ये किसको करते हैं? सीडीएसईओ को करते हैं और पीवीपीआई को भी करते हैं, लेकिन जो इसका मेन है वो सीडीएसईओ ही है। पीवीपीआई भी को भी कुछ आ जाते हैं कंपनीज के थ्रू, तो वो सीडीएसईओ में उसको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट क्या होते हैं वो मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स होते हैं वो कंपनीज के थ्रू किए जाते हैं। जब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है तो उसके बाद जब कोई भी ड्रग मार्केट में आ जाती है तो उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग होती है कौन करेगा? या तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल करेंगे, पेशेंट करेंगे, जनरल पब्लिक करेगी और कंपनीज करेंगी। तो जो कंपनीज करती हैं वो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट के उसमें करती है ना। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।